Good morning, Namra. Good morning. Good morning. Swarnim, screen visible है बेटा? तब तक आप लोग डायग्राम बना लीजिए. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. लास्ट टर्न डिस्कस. I will explain again in detail for sliding window protocol. Meanwhile, it is time. Draw your diagram. So, in continuation of last lecture conducted on 8th October,
where I discuss about sliding window protocol. I am going to discuss in detail about the working of sliding window protocol. So there are two window in entire sliding window protocol. First one is sender window. ओके ये डायग्राम सभी को डिस्प्ले हो रहा है, सभी को दिख रहा है. हाँ. So in the sender window, the process, how is it going on, and at the receiver end, say receiver window process is how going on, I am going to discuss. So at the beginning of, शुभांगी बेटा जल्दी ज्वाइन करो, आप लोग अभी तक टाइम हो रहा है. At the beginning of transmission, the sender window contains, I already told you, n minus 1 frames. When if the size of window is 8, यानी अगर आप कह सकते हैं मॉडुलस 8 है तो जो आपका फ्रेम होगा उनका नंबर होगा n-1 एंड टोटल जो विंडो का जो फ्रेम होंगे वो 8 होंगे. स्टिल people are joining. So at the beginning of transmission, the sender window contains n-1 frames. Okay. As the frame are sent out, the left boundary of the window moves inward, means going to shrink. As soon as 3 frames 0, 1, 2 are sent out to the receiver end, the left boundary of the window going to shrink at the right side. Okay, then the size of window is shrink as the size of actual window. Means suppose if the size of actual window is W, then now size will be become W minus 3, means 3 frames are sent out to the receiver side. Okay, understand? Once an acknowledgement arrives, means ACK, acknowledgement ACK arrives, the window expand to allow a new frames equal to the number of frames acknowledged or the sent to the receiver end. Okay. So suppose if 3, 0, 1, 2, 3 frames are sent out to the receiver end, your window is shrink rightwards W minus 3, which is the actual size, W is the actual size of the window, and 3 frames are sent out to the receiver end. Now window shrinks and boundary जो है आपकी यहां से स्टार्ट होने लगी. दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री. टाइमली ज्वाइन करिए, अदरवाइज आई विल नॉट परमिट यू इन क्लास, क्योंकि बार बार कॉन्सेप्ट फिर ब्रेक हो जा रहा है और समझ में भी नहीं आएगा. सो द लेफ्ट बाउंड्री ऑफ द विंडो इज श्रिंक्स rightwards and this is imaginary boundary of the window at left side. As soon as the acknowledgement ACK of sent frame 0, 1, 2 received, the right window or the right wall of the window directly moves to the right, expand to the right end and grabs its original size. Mean the original size was actually 7 frames. तो ये आपकी डायरेक्टली राइट साइड में फिर से एक्सपेंड हो जाएगी as soon as your acknowledgement is received for the frame sent. Okay, I already write here, the wall moves to the right when a frame is sent. The wall moves to the right when an acknowledge is received. आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए. इसी तरह से पूरे फ्रेम आपके सेंड होते जाते हैं और जैसे जैसे आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते जाते हैं आपका विंडो ग्रो होता चला जाता है.
जैसे ही आप सेंड करते हैं विंडो श्रिंक होता जाता है। इसमें इस प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिसीवर विंडो। सिद्धार्थ सिंह, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? सिद्धार्थ, हाँ आवाज आ नहीं रही है तुम्हारी। अब आ रही है। कोशिका महाजन, have any doubt in this concept about the working of sender window? This is very important protocol and also important in point of end semester examination also. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो आस्क्ड इन द दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी फ्रेम होती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे ही आप फ्रेम सेंड कर देते हैं तो तुरंत विंडो लेफ्ट साइड से सेंड करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट की ओर आपका श्रिंक हो जाएगा, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंड फ्रेम्स के आपको रिसीव हो जाएंगे, आपका विंडो जो वॉल है, राइट वॉल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी along with 3 फ्रेम्स। जितने आपने फ्रेम सेंड किए उसी करस्पॉन्ड में आपकी विंडो जो वॉल है विंडो की वो एक्सपेंड होगी और श्रिंक होगी। दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस until entire frame is sent to the receiver end and the acknowledgement also received for the corresponding frame which is already sent to the receiver end. Next come to the receiver window. Same procedure, same diagram. See, networking is the concept which is based on the diagram and practical approach. कल मैंने कुछ लोगों की आपकी ट्यूट कॉपी भी चेक की है रोल नंबर वाइज, 1 to 10, 1 to 12 तक शायद मैंने चेक करके आपको सेंड भी वापस कर दी है। तो उसमें मैंने देखा है आप लोगों ने डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं बनाए हैं, चाहे वो मोहम्मद आफ्ताब हो, एक दो का मुझे नाम याद आ रहा है, अनमोल कश्यप हो या अंशुमान, आपके आंसर बहुत छोटे हैं, आधे आधे पेज के आंसर लिखे हुए हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आंसर बड़े रखिए, और आंसर बड़े लिखने का मतलब मेन रीजन है कि पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस होना चाहिए, और आपके लिए की हिंट या की पॉइंट है कि आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें उसका डायग्राम जरूर बनाएं, इवन इट इज डिस्कस्ड इनटू अ लेक्चर और नॉट। नहीं होता है तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिए जो कन्वर्सेशन हो रहा है। विदाउट डायग्राम आंसर इज नॉट एक्सेप्टेड, और उसकी लेंथ जो आप चाह रहे हैं वो बढ़ेगी नहीं। ये सभी लोग ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन सीएसएमए सबने एक तो क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो सेम रखा है। मैंने आपको पहले बताया ये जितना भी ये सब रिकॉर्डेड है और ये एनालाइज हो रहा है। आपके कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स भी 0 हुए हैं, ये सब अल्लाह सब लोगों को पता है। तो ये मत करिए। अगर आप किसी से हेल्प भी ले रहे हैं तो कम से कम अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करिए, ये ध्यान रखना है। सीएसएमए क्वेश्चन लिखा लास्ट, एक तो सभी का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का ऑर्डर या तो शफल करिए, एंड सीएसएमए का तो मैंने डायरेक्टली फ्रेम फॉर्मेट आपको बना के बताया है, तो फ्रेम फॉर्मेट वहां से बिल्कुल स्किप कर दिया आपने, आंसर बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, ये एक्सेप्टेड नहीं है। मोहम्मद आफ्ताब कॉपी मुझे लग रहा है मैंने आपको रिटर्न कर दी है, और शायद चेक भी है, कमेंट भी लिखा हुआ है। ओके, एक बार देखिएगा, उसमें कमेंट भी लिखा हुआ है। नाउ कम टू द रिसीवर विंडो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम से ही सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करिए, डायग्राम से ही एक्सप्लेन करिए, डायग्राम को ही रिप्रेजेंट करिए, ये ध्यान रखना। रिसीवर जो है विंडो बना लीजिए। रिसीवर विंडो भी सेम बिल्कुल आपकी वैसी रहेगी जैसे कि आपकी सेंडर विंडो है।
काजल वर्मा, काजल वर्मा, काजल वर्मा, what is the reason I am going to number the frame 0 to 7 and again 0 to C1? What is the logic behind this concept? क्या रीजन है इसका? अगर आप कहेंगे आवाज नहीं आ रही तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो बताइए रीजन क्या है? हैं? ये 7 से 8 क्यों नहीं जा रहा है? 9 10 क्यों नहीं जा रहा है? और आपको समझ में सब आ रहा होगा। बताइए, जल्दी बताइए, हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम। पढ़ लीजिए, पढ़ के दोबारा ज्वाइन करिए। अनुषा, अनुषा, हाँ आप बताइए, सेम क्वेश्चन। क्यों? पढ़िए आप भी, पढ़ के ज्वाइन करिए दोबारा। डायग्राम पैरेलली बनाते रहिए, ड्रॉ करते रहिए। यहाँ हम लोग बताते चले जाते हैं, आप कुछ चीज को रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। डिम्पल, डिम्पल सोनी, बताइए बेटा। हाँ, ये फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 क्यों? ऐसा क्यों है बेटा? 0 to 7, ठीक है। मीन्स जब हम मॉड की बात करते हैं, विंडो का साइज डिसाइड कर लेते हैं प्रीवियसली, मॉड एन है या जो भी साइज है, तो जो फ्रेम होंगे वो लेस देन, जो नंबर होगा फ्रेम का वो लेस देन n-1 होगा। दिस इज द बेसिक रीजन कि फ्रेम जो नंबर्स होते हैं 0 to 7, क्योंकि फ्रेम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे प्रोटोकॉल और करेंगे, एरर कंट्रोल में भी और डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल दूसरा टाइप का है, तो उसमें भी दूसरा लॉजिक है। फ्रेम के नंबर दूसरे तरह से जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट का जो है फॉर्मेट दूसरा होगा। तो जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को वी आर गोइंग टू एनालाइज, द रीजनिंग बिहाइंड द नंबरिंग ऑफ फ्रेम, द रीजनिंग बिहाइंड द एक्नॉलेजमेंट नंबर must be understand before doing the process. It is compulsory. तो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। हाँ काजल वर्मा बताइए, काजल वर्मा बताइए रीजन। 80 फ्रेम होते हैं, ओके। तो नंबर 0 to 7 क्यों देते हैं, 1 to 8 क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, 1 to 8 दे देंगे तो 8 फ्रेम हो जाएंगे, और 0 to 7 में 8 नहीं होते हैं। और 1 to 8 में देंगे तब 8 काउंट नहीं होंगे।
ये बताइए, सारे लेक्चर आप हमारे सुनते हैं बाद में? है आपके पास एक फोल्डर है क्या? जैसे ही क्लास कॉलेज खुलेगा आपसे नोट्स मांगा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी वीडियो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं उन सबको वो कहता है एक फोल्डर होना चाहिए जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। समझ रही हैं? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लास कर लिया, अटेंडेंस लगा ली, सुन लिया, इससे काम नहीं चलना है। दिस इज मेन द कॉन्सेप्ट इज दैट जब भी विंडो का साइज होता है जो हम लोग लेते हैं तो मॉड एन के अकॉर्डिंग 0 to 7 जो उनका ऑर्डर होता है, हमारा स्टार्ट 0 से होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, गिनती नहीं है कि गिनती तो आप चाहे 2 से शुरू करिए 9 तक, 3 से 10 तक करिए तब भी आरटी फ्रेम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि हम मॉड एन निकालते हैं, मॉड एन निकालते हैं तो जो फ्रेम होते हैं वो 7 तक ही लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग आपकी 0 से हो जाती है, इसलिए 0 से लेके 7 फ्रेम तक होंगे और उसी के अकॉर्डिंग। और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम को मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n-1 फ्रेम्स होंगे, 2 की पावर n-1 टोटल फ्रेम होंगे। अगर 8 मॉड है तो 2 की पावर 8 25 256, ठीक है, और 256 -1 यानी टोटल 255 फ्रेम्स होंगे। और उनके नंबर्स 0 to 7, 0 to 7, 0 to 7, 0 to 7 और लास्ट वाला फर्दर जो है 0 to 6 होगा। इसलिए देखिए जब भी हमने डायग्राम बनाया 6 तक लेके गए हैं क्योंकि एक कम फ्रेम होता है। बहुत अच्छे समझिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स का फॉर्मूला 2 की पावर n-1, फ्रेम नंबर्स जो होंगे वो होंगे W-1 या n-1, जो विंडो का साइज है वो एक कम होगा और 0 से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द रिसीवर विंडो। एज द वर्किंग ऑफ सेंडर विंडो, सेम वर्किंग इज आल्सो रिसीवर विंडो। In the beginning of transmission, the receiver window contains actually not n-1 frames, but it contains n-1 spaces. आप ये ध्यान रखिए, जो विंडो जो सेंडर विंडो होता है उसके पास n-1 फ्रेम्स होते हैं, एंड इन द रिसीवर विंडो there are n-1 और W-1 where n और W is the size of window. It contains n-1 और W-1 spaces और buffers to receive the frame. Is it clear? ये कॉन्सेप्ट पता चला सबको? ये बात समझ में आई? प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म हो रहा है? सेंडर में सारे फ्रेम्स रहते हैं, रिसीवर में फ्रेम का स्पेस रहता है। और ये ऑलरेडी व्हेनेवर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज गोइंग ऑन, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है और उसी अकॉर्डिंग ही फ्रेम का स्पेस या बफर क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द रिसीवर साइड। एज न्यू फ्रेम्स कम्स इन द साइज ऑफ रिसीवर्स विंडो shrinks. The receiver window therefore represent not the number of frames received but the number of frames that may still be received before an acknowledgement, that is ACK, must be sent. Given a window of size W, if 3 frames are received without an acknowledgement being written, the number of spaces in the window is now W-3. Process is same as per the sender window. वहां पे सीधे आप फ्रेम सेंड करते हैं, यहाँ पे आपके इसके जो भी स्पेस बचे हुए या बफर्स होते हैं उनको आप फिल करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस वहां पे होता है सेम प्रोसेस और सेम स्क्रूटनाइज जो है वो यहाँ पे भी परफॉर्म होती है। स्क्रूटनी का सारा प्रोसेस यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होता है एज द सेंडर विंडो। As soon as an acknowledgement is sent against the received frame, the window expands to include
places for a number of frames equal to the number of frames acknowledged. Okay, here I already told you this wall moves to the right when a frame is sent. Comparison with receiver window, this wall यानी लेफ्ट बॉल मूव्स टू द राइट व्हेन फ्रेम इज रिसीव्ड. बिल्कुल प्रोसेस अपोजिट है. एंड दिस जो वॉल मूव्स टू द राइट व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेंट फ्रेम यानी 0 1 2 जो आपने फ्रेम भेजे थे 3 उनका जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है सेंडर विंडो राइट साइड एक्सपेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. यहां पे दिस वॉल मूव्स टू द राइट व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंट, क्योंकि रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव्ड फ्रेम्ड है उनके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट आपको सेंड करेगा, तो उसकी विंडो आपकी ग्रो हो जाएगी. लेकिन प्रोसेस हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा. आया समझ में? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, दोनों विंडो मैंने आपके सामने रख दी, दोनों विंडो का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. मीन द स्लाइडिंग विंडो ऑफ द सेंडर shrinks from left when frames of data are sent. The sliding window of the sender expand to the right when an acknowledgement received, while the sliding window of receiver shrinks from the left when frames of data are received, and the sliding window of receiver expand to the right when an acknowledgement is sent. तो प्रोसेस आपका जस्ट अपोजिट है. एंड द एंटायर एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस एंड द सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस इज सेम एज पर द सेंडर विंडो और द रिसीवर विंडो. कोई भी चेंजेस नहीं होते. आप समझ लीजिए बिल्कुल इमेज है दोनों साइड. लेकिन चूंकि दोनों प्रोसेस पैरेलली कम्युनिकेट होते हैं, दोनों जो एंड है आपके यानी सेंडर और रिसीवर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होते हैं, तो ये प्रोसेस इजिली आपका कम्युनिकेट हो जाता है एंड परफॉर्म हो जाता है. इसीलिए दो विंडो पैरेलली बना दी जाती है कि कहीं कोई मिस ना हो, कोई फ्रेम आपका लॉस ना हो या डैमेज ना हो. Sometime it is also possibility that you have received the frame successfully, but due to the mismanagement or the misarrangement, your frame is lost or not recognized or synchronized as the receiver end. तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है. To avoid this problem, this concept is used. दोनों विंडो दोनों एंड पे आपकी इस्टेब्लिश कर देंगे. एक बार देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने है दोनों विंडो का. कोई भी डाउट हो कहीं भी तुरंत पूछिए. अनुषा, हाँ पता चला व्हाट इज द रीजन? वन से स्टार्ट क्यों नहीं होगा बताइए ना. 8 तो तब भी होंगे ना. इट इज माई सिंसियर एडवाइस टू यू, प्लीज डाउनलोड प्रीवियस लेक्चर नंबर 22 डेटेड 8 अक्टूबर 2020. लिसन द लेक्चर केयरफुली. आप तो कुछ और बता रही हैं. 0 से स्टार्ट होगा क्यों होगा? रूल है, रूल कैसे बनाया, रूल कैसे आपका जो है परफॉर्म हो रहा है. मैंने आपको बताया, रूल के पीछे लॉजिक बताया. बताया कि नहीं बताया? भाई आपने कहा 0 से स्टार्ट होगा, मैंने कहा 1 से लेकर के 8 तक क्यों नहीं होगा? देखिए ध्यान रखिए, हमेशा जब भी हम लोग फ्रेम का साइज हमने बताया n-1 होगा,
या मॉड जब हम निकालते हैं तो मॉड की जो रेंज होती है वो हमेशा इसलिए रहती है बिकॉज इट इज अ मेथड टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी। ओके, किसी तरह का कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्शन या कोई भी एम्बिग्विटी, मिसमैच से बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि विंडो का साइज 8 है, हमने फ्रेम का साइज भी 8 रख दिया। हमेशा ध्यान रखिए कौन सा हमने मॉड की बात क्यों करी। तो हमने अगर उसका साइज भी 8 रख दिया और साथ ही साथ फ्रेम नंबर भी 8 है, तो हो सकता है जो रिसीवर एंड है मे बी कंफ्यूज्ड और देयर मे बी सम एम्बिग्विटी इनटू द रिसीवर एंड, एट द रिसीवर एंड आल्सो, कि जो 8 है वो एक्चुअल में साइज ऑफ विंडो है और द नेम ऑफ फ्रेम है। सो दैट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द फ्रेम्स नंबर्स, हम इसके साइज को एक डिक्रीज कर देते हैं, n-1 कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि मॉड हम क्यों बता रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, और फ्रेम का नंबर का जो है वो 0 से लेकर के जो आपका n-1 है वो क्यों लेके जाते हैं। तो जब आप पहले प्रीवियस लेक्चर सुनेंगी तब पता चलेगा। अब आप कह रही है नहीं 8 तक जाएगा तो 1 to 8 भी जाएगा, तब भी जो है 8 फ्रेम होंगे, 2 to 9 होगा तब भी 8 फ्रेम होंगे, 3 to 10 होगा देन ओनली। तो सेम प्रोसेस है, इसमें दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने अगर आपको रिमूव किया तो इसका यही मतलब है कि एक बार जाइए, लेक्चर खोलिए, फटाफट सुन लीजिए कि सर ने क्या कहा था। लेकिन अब आपको इतनी तसल्ली भी नहीं है कि किस मिनट में ये बोला होगा। अब आपको लग रहा है कि लेक्चर तो 45 मिनट का है, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। These are small things which is very important before discuss any protocol in detail। इसको बहुत छोटा ना समझिए, यही रीजन मैंने तब भी बताया था। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए 1 मिनट में। नाउ कम टू द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ डेटा लिंक कंट्रोल, दैट इज एरर कंट्रोल। Okay, this is the last responsibility of data link layer or the data link control known as error control. Error control means error detection and retransmission. Error control is the method which contains two processes. First one is error detection, second one is retransmission और करेक्शन। करेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा रीट्रांसमिशन, क्योंकि करेक्ट का मतलब व्हेन द फ्रेम इज इन द वे और रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड देन देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी और द सिचुएशन रिमेन्स यू मस्ट सेंड द डैमेज फ्रेम अगेन और रीट्रांसमिट इट। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। एक बार अगर आपका फ्रेम सेंडर स्टेशन से बाहर निकल गया, मिड वे में क्रैश हो गया, डैमेज हो गया, या रिसीवर एंड पे मिसमैच हो गया, प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, तो रीट्रांसमिशन इज द ओनली प्रोसेस। ओके, so error control in the data link layer is based on the important protocol or the procedure known as ARQ. This is automatic repeat request. Automatic repeat request. This is the main process जो कि आपके एरर कंट्रोल को मैनेज करता है, एरर कंट्रोल प्रोसीजर को मैनेज करता है। ओके, सो एरर करेक्शन इन द डेटा लिंक लेयर is implemented simply any time an error is detected in an exchange of
अ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट दैट इज योर NAK। एक होता है ACK, ACK हमेशा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट को रेफर करता है एंड NAK निगेटिव एक्नॉलेजमेंट को रेफर करता है। सो एज सुन एज NAK एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड और रिटर्न in the any special frame or the any special causes or case, the only retransmission is the procedure or the correction method to avoid or implement the process of error control. This is known as automatic repeat request. Understand the process? There are three cases. जब हम ARQ की बात करते हैं तो एरर कंट्रोल या एरर डिटेक्शन में ये 3 प्रोसेस होते हैं। किस तरह की एरर आपकी डिटेक्ट होती है? देखिए, फर्स्ट वन है आपका पहला जो डैमेज्ड फ्रेम होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन लॉस्ट फ्रेम, थर्ड वन लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। किसी भी सिचुएशन पे कहीं भी अगर आपको डाउट हो कॉन्सेप्ट में तो तुरंत पूछिएगा। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, डैमेज फ्रेम मीन द फ्रेम इज सेंट फ्रॉम द सेंडर एंड बट इट इज डैमेज क्रैश्ड इन द मिडवे और द एट द रिसीवर साइड। सेकेंड वन इज लॉस्ट फ्रेम, आपने फ्रेम को सेंड किया बट इट इज लॉस्ट और द कैप्चर्ड बाई सम अनऑथराइज्ड स्टेशन, और वो रिसीवर एंड तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेम भी रिसीवर एंड पे पहुंच जाते हैं जिनको हम लोग ऑर्फन फ्रेम्स कहते हैं, यानी कैप्चर करने के बाद उनका मेन डेटा आपने रिसीव कर लिया और उसके बाद उसमें रॉ डेटा या अनऑथराइज्ड जो कि आपके काम का नहीं है वो डेटा सेंड कर दिया रिसीवर एंड पे, और जब आपने मैच किया तो वो मैच नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑर्फन फ्रेम में कैटेगरी में डाल देते हैं, वहां पे इस पे बात नहीं हो रही, हम इसको लॉस्ट ही मान लेते हैं। एंड थर्ड वन इज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, देयर इज आल्सो सम पॉसिबिलिटी और द सिचुएशन वेयर रिसीवर एंड सेंड द एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट द फ्रेम it is received but acknowledgement is not received by the sender। ये भी सिचुएशन होती है कि आपके रिसीवर एंड ने तो सक्सेसफुली फ्रेम को रिसीव कर लिया और उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, बट सेंडर इज नॉट केपेबल और द एक्नॉलेजमेंट इज हैक्ड क्रैश्ड ड्यू टू द सम कॉजेस। तो ये भी केस होता है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ये मान लिया जाता है कि वो फ्रेम नहीं पहुंचा है और रीट्रांसमिशन उसका भी होता है। रीट्रांसमिशन इज द ओनली वे टू टैकल दीज टाइप ऑफ एरर्स। दिस इज ओनली एरर करेक्शन मेथड। ओके, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एरर कंट्रोल और द ARQ जो कि हमने बताया एरर करेक्शन, इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉप एंड वेट, सेकेंड वन इज स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो इज ऑलरेडी डिस्कस, सेम प्रोसीजर इज सेम एज द फ्लो कंट्रोल। जो एरर कंट्रोल में स्लाइडिंग विंडो प्रोसीजर का रोल था सेम वही फ्लो कंट्रोल में, तो is it no need to discuss it again, all procedure is carried out same as the sliding window protocol of flow control। और ये भी ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि उसने एरर कंट्रोल का के कॉन्टेक्स्ट में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को डिस्कस करने के लिए आपसे बोला हो। सबसे पहले इस चीज को जरूर इंश्योर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं? काजल गुप्ता, काजल गुप्ता, आवाज आ रही मेरी? ये ध्यान रखिएगा
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एरर कंट्रोल में भी है और फ्लो कंट्रोल में भी है। प्रोसीजर सेम है, लेकिन आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आप फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे हैं या एरर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर दोनों में सेम है। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफर है आपके स्टॉप एंड वेट में, समझ रहे हैं? स्टॉप वेट भी फ्लो कंट्रोल में था, लेकिन यहां पे थोड़ा प्रोसीजर आपका थोड़ा सा चेंज है, तो मैं इसको इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं डिटेल में। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज सेम एज इन द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ऑफ फ्लो कंट्रोल। तो स्टॉप एंड वेट, फ्लो कंट्रोल का स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल डिस्कस कौन करेगा, थोड़ा सा मुझे बताएं आप लोग। रितिका, रितिका सक्सेना, रितिका। हाँ बेटा, स्टॉप एंड वेट बताइए क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्लो कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। देखिए प्रॉब्लम इसे भी इसलिए है क्योंकि आपने नोट्स बनाए नहीं है, क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं तो आपके पास नोट्स तो है नहीं। इट इज द ओनली रीजन यू आर नॉट कंफर्टेबल टू आंसर द आस्क क्वेश्चन। कुछ बच्चे ही हैं बस वही घूम फिर करके आंसर देते हैं। प्रखर वाजपेयी, हाँ बताओ बेटा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। देखिए सही बता रहे हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एज नेम, sender send a frame, one by one frame is sent at a time. Sender send a frame and wait for the acknowledgement of the sent frame. As soon as sender receives an acknowledgement against the sent frame, then it sends again the second frame. When it receives the acknowledgement of second frame, it sends the third frame. तो ये प्रोसेस आपका पूरा चलता रहता है until entire frame is sent and the acknowledgement of all sent frame is received by the sender. स्टॉप एंड वेट का मतलब ही यही है कि फ्रेम सेंड कर दिया, रुक गया सेंडर और वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का, समझ रहे हैं? जब एक्नॉलेजमेंट आ गया तब दूसरा फ्रेम सेंड करते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फिर से चेक होता है, रिसीवर एंड से आपका कन्वर्सेशन होता है, रिसीवर एंड अगर बोलता है तो अगेन सेंड द प्रीवियस फ्रेम, और तब नेक्स्ट फ्रेम का प्रोसीजर आगे फॉलो होता है। ये ध्यान रखिए। सो बिफोर डिस्कस स्टॉप एंड वेट, देयर आर सम सिचुएशन विच मस्ट बी डिस्कस बिफोर द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जो भी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या सिचुएशन होती है? पहला, फर्स्ट वन इज द सेंडिंग डिवाइस और द सेंडर कीप्स अ कॉपी ऑफ लास्ट फ्रेम transmitted until it receives an acknowledgement for that frame, which is already I told you. Keeping a copy allows the sender to retransmit lost or damaged frame until they are received correctly. Second point, I will send you detailed note. For identification purpose, both data frames and acknowledgement frame, that is your ACK frames, are numbered alternately. 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में होते हैं, मीन्स
data frame is 0, acknowledgement frame against the data frame 0 is 1. Again, data frame is 1, acknowledgement against the data frame 1 is 0. 0 1 0 1 चलता रहेगा. फिर तीसरा अगर आपको डेटा फ्रेम भेजना है तो वो फिर 0 होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट 1 होगा. फोर्थ फ्रेम होगा, उसका नंबर होगा 1 और उसका एक्नॉलेजमेंट होगा 0. यानी 0 1 के फॉर्म में ही पूरे फ्रेम्स आपके सेंड किए जाएंगे और एक्नॉलेजमेंट भी 0 एंड 1 के सीक्वेंस में सारे रिसीव होंगे. ठीक है, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आपके पास सरप्राइज क्विज आया होगा, आ गया सभी के पास? आया होगा बेटे, देखो. ठीक है, वेट कर लो, 1-2 मिनट में आएगा. सरप्राइज क्विज 6. वेट फॉर अ मिनट. 10:40 पे मैंने उसको शेड्यूल किया था.